ओके सुप्रिया, हम आज फिर जो है ना ब्लेसिड टेस्ट सेंटर के बाहर बैठे हुए हैं और आज हम नेविगेशन की ड्राइविंग करेंगे। नेविगेशन के ऊपर चूँकि आपका टेस्ट अभी इतना दूर नहीं रहा तो हम थोड़ी कोशिश करेंगे। लास्ट वीक में हमने थोड़ी सी की थी जो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग की थी ऑन द साइन बोर्ड को रीड करने की। आज हम नेविगेशन की करेंगे चूँकि 20 मिनट्स की जो ड्राइविंग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, चाहे वो नेविगेशन की हो चाहे वो साइन बोर्ड्स को फॉलो करने के लिए आपको वो बोले। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी हो? ओके, ड्राइव ऑन व्हेन यू आर रेडी प्लीज़। Can you clean your front windscreen please? करके रखो एक बार, वो रखो तो होल्ड करके रखो उसको। After 90 yards, turn right, Church Green Road, then cross the roundabout and take the second exit, Brickley Lane. अच्छा, मॉक टेस्ट करना है? Yes. मॉक टेस्ट ठीक है। वो उसका नतीजा मैं फिर आपको ना रिजल्ट एंड पे दूंगा, ठीक है? वाइपर्स को एक बार ऊपर कर दें, ऊपर ऐसे वहाँ पे देगा। After 100 yards, cross the roundabout and take the second exit, Brickley Lane. Cross the roundabout and take the second exit. Pull up on the left when it is safe to do, please. Thank you. Drive on when you're ready, please. Keep this straight here. Keep this straight, please. After 200 yards, go left on the roundabout and take the first exit, Wadden Way. Go left on the roundabout and take the first exit. After 100 yards, go right on the roundabout and take the second exit, Shenley Road. Go right on the roundabout and take the second exit. तो ये रोड जो है ना ये बहुत मुश्किल है, ठीक है? आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मुश्किल है ये रूट। ओके,
ये रूट नंबर 22 है, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये मुश्किल रूट है। ओके, ये जो यूजुअली हम करते हैं ना, ये उससे टोटली हट के है। जो मेरा दूसरा चैनल है MK ड्राइविंग एकेडमी वाला, उसके ऊपर मैंने ये अपलोड किया हुआ है, इंग्लिश में है। और ये जो है ना रूट नंबर 22 है, ये इम्पोर्टेंट वाला है, देख लेना। बहुत मुश्किल भी है ये वो जो मुश्किल रूट है ना, ये उनमें आता है। वीडियोस तो वैसे देखे हैं बट After 200 yards, cross the roundabout and take the second exit, Shenley Road. Cross the roundabout and take the second exit. After 100 yards, go right on the roundabout and take the third exit, A421, Standing Way. Go right on the roundabout and take the third exit. Go right on the roundabout and take the third exit, A421, Grafton Street. Go right on the roundabout and take the third exit. After 400 yards, cross the roundabout and take the third exit towards Denver.
roundabout and take the third exit. क्या हुआ? स्ट्रेट जाना है यहाँ से राइट। थर्ड एग्जिट करना ना हमने। बट ये स्ट्रेट कीप गोइंग प्लीज, कीप गोइंग प्लीज। चलती रहे ना, जब देखा जाएगा वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा। काउंटिंग करें प्लीज। कौन सा एग्जिट हमने करना है? थर्ड। तो क्या यहाँ से थर्ड एग्जिट नहीं होगा? एरो में स्ट्रेट ही दिखा यहाँ से। एलो को छोड़े, यहाँ से थर्ड एग्जिट होगा या नहीं होगा? Take the exit, Grafton Street. हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? From the roundabout, we are going straight ahead, okay? Towards those traffic lights, please. Cross the roundabout and take the second exit, Watling Street. इस सेकंड एग्जिट है वोटलिंग स्ट्रीट वाला। ये भी आपने किया ऑलरेडी। प्रिया जी, बोला था मैंने आपको। दूसरी कार्स को देखना नहीं। जी? दूसरी कार्स को नहीं देखना चाहिए। हाँ। मेरे को था After राइट देखना 100 है। तो yards, दोनों कार्स। cross the roundabout and take the second exit, Watling Street. Cross the roundabout and take the second exit. After 200 yards, cross the roundabout and take the first exit, Watling Street. Cross the roundabout and take the first exit. स्पीड यहाँ पर कितनी है? 30। After 200 yards, Okay, at the cross double the roundabout, turn roundabout right, and please. take the second ये exit. इंस्ट्रक्शन देता है क्रॉस द रोड देन राइट, ठीक है? तो वो कंफ्यूज करता है, ओके? डबल राउंड बोर्ड से हमने सेकंड राउंड बोर्ड से राइट करना है। राइट। Cross the roundabout and take the Yes, second instruction. exit, Yeah. Watling Street. Go right on the roundabout and take the second exit, Aylesbury Street. Turn left, then take the second right.
turn right, Cambridge Street, then turn left. Turn left, St. Martin's Street. At the end of the road, turn right, then, at the end of the road, turn right. Turn right, Regent Street, then, at the end of the road, turn right. What are you doing? Why are you going there for? You going? Okay. थोड़ा इधर जाओ. देखिए आराम से. Turn right, Albert Street, then take the third left. थोड़ा आगे जाओ. थोड़ा सा आगे जाओ. बस थोड़ा सा आगे जाओ. थोड़ा सा आगे जाओ. बस. निकालो गाड़ी को. End of the road, turn right, please. Pull up on the right when it is safe to do, please. Thank you. Reverse back to cause length when it is safe to do, please. Thank you. You done? Yes. Can you open the door, please?
How far is the curve? Okay, drive on when you're ready, please. Turn left, then cross the roundabout and take the first exit. After 100 yards, turn left, Wilton Avenue, then you have reached देखो your ये सारे ब्लैक आ destination. रही हैं, ठीक है? हाँ, अब तुमको तो Turn left, then you have reached your destination. ओके सुप्रिया जी, ये आज आपका जो मॉक टेस्ट है इसका एंड हुआ। तो अगर आप मुझे खुद से बताएं कि कैसा रहा ये आपका आज का मॉक टेस्ट। टेस्ट तो डिफिकल्ट था एंड आई नो फेल तो मैं हो गई हूँ काफ़ी टाइम्स बट ये कि मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न की है इस रूट से तो जो मिस्टेक्स आज हुई हैं आई विल डेफिनेटली रिमेंबर स्पेशली बिगिनिंग में जो बहुत मिनी राउंड अबाउट्स आए थे उसमें बहुत फोकस करना है हमको लगता है कई बार ओके मिनी राउंड अबाउट है बट राइट से गाड़ियाँ आती हैं वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और एक दो तो मिस्टेक्स हुए हैं जो मेरे नॉलेज में मुझे पता था मतलब करना चाहिए बट ऑब्जर्वेशन इश्यूज यस मेन ऑब्जर्वेशन विंडो नीचे कर दें, अच्छा ठीक है। फिर यस आपने ब्रेक्स यूज़ किए बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि मैं जब भी ऑब्जर्वेशन कर रही थी गाड़ी आ रही थी एंड आई नीड टू स्लो डाउन और वेट फॉर देम टू गो फर्स्ट मेजर मिस्टेक्स यही था आज। कितनी मेजर मिस्टेक होंगे आपकी आज? 4 या 5 4 या 5 तो नहीं होनी चाहिए ना। हाँ वही दिक्कत है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन सारी बीमारियों की जड़ जो है वो क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कौन सी जड़ है इसकी? आज 2 है, कौन एक सी? ऑब्जर्वेशन एक स्पीड। ड्राइविंग में जो सब बीमारियां ना ड्राइविंग की या उन सब बीमारियों की जो जड़ है ना, जिसको बेस कहते हैं, वो है स्पीड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपके इतने बैड नहीं है, स्पीड है। ठीक है, आज जितनी भी गाड़ी मिस्टेकें आपने की है ना, मोर और लेस उनमें वो सारी मिस्टेक्स आपकी स्पीड की वजह से हुई हैं। ठीक है, जब मैं 1 बाय 1 उनको डिस्कस करूँगा तो फिर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं, जब हम यहाँ से निकले हैं, ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि राइट करते हैं, हमने राइट किया, फिर आगे राउंड अबाउट नेविगेशन लग गया था। ठीक है, फिर राउंड अबाउट से फिर मैंने आपको जब पूछा था कि मॉक टेस्ट कर रहे हैं, आपने कहा मॉक टेस्ट करना है। तो राउंड अबाउट से जब हम स्ट्रेट गए तो हमारे पीछे एक बंदा टेल गेटिंग कर रहा था, ग्रीन कलर की गाड़ी थी उसकी, लाइट ग्रीन सा कलर था उसका, बहुत करीब गाड़ी चला रहा था। तो राउंड अबाउट से जब हम निकले हैं तो मैंने आपको बोला कि पुल अप ऑन द लेफ्ट व्हेन इट इज सेफ टू डू सो। ठीक हो गया, बोला था ना? आपने इंडिकेटर कब दिया? जब लेफ्ट करने वाली थी। तो क्या उससे पहले एक लेफ्ट टर्निंग नहीं थी, वो एक रोड जाती है अंदर की तरफ? ठीक है, याद आया आपको? आपने नहीं देखा, ये तो 50 बार हम इसको कर चुके हैं, बिल्कुल हमारे टेस्ट सेंटर के बिल्कुल करीब, आप वहीं फेल हो गई थी। एक तो हमारे पीछे वो आदमी था, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इंडिकेटर दिया, वो लेफ्ट टर्निंग था, आप ना लेफ्ट टर्न नहीं किया आपने, आप आगे गई, फिर छोटा सा बस स्टॉप है और बस स्टॉप के आगे से थोड़ा सा जाके आपने पार्क किया। पार्किंग तो आपने ठीक की, टाइम भी आपने आपको बहुत अच्छा दिया, उसको भी आपने अच्छा टाइम दिया, लेकिन आप स्लोली करते, ग्रेजुअली स्लो करते और इंडिकेटर ना देते तब तक जब तक कि वो लेफ़्ट टर्निंग ख़त्म ना हो। और ये मिस्टेक आपने एक बार अब की है और एक बार अभी लास्ट पे वापस आते हुए भी आपने की है। जब उसने बोला कि एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट करो, तो आपने इंडिकेटर दे दिया था एंड पे। ठीक है,
और फिर आप जा रही हो और फिर आगे आपने देखा एक और टर्निंग आ गई है, तो पहले अपनी जगह का देखो ना, जगह चूज़ करो क्या करना है, उसके बाद इंडिकेटर दो। जब एंड ऑफ द रोड उसने बोला है, आपको एंड ऑफ द रोड नज़र ही नहीं आया, नेविगेशन कभी कभी अर्ली देता ना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन बहुत अर्ली होता है, तो आपको वेट करें ना, देखें कि एंड ऑफ द रोड जब आएगा उससे पहले पहले पता चल जाएगा कि कोई और टर्निंग तो नहीं है, तो फिर इंडिकेटर दे सकती हैं। उससे पहले अगर टर्निंग आ गई तो फंस जाएंगी, जैसे आप वहाँ फंस गई थी, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपका हुआ था, ये सीरियस मिस्टेक होगा, ओके। और अब फिर उसी जगह पे जब आपने मूव ऑफ किया, ठीक है, मूव ऑफ किया, आपने पूरे ऑब्जर्वेशन किए, गाड़ियाँ आ रही थी, उधर से भी गाड़ियाँ आ रही थी, ठीक है। तो मैंने जब आपको बोला कि वी आर गोइंग स्ट्रेट अहेड, 2 दफ़ा मैंने आपको बोला स्ट्रेट अहेड, क्योंकि आपका इंडिकेटर ऑन था। हाँ हाँ yes, उस इंडिकेटर का क्या मतलब होता है कि हम कि राइट मुझे टर्न कर right रहे turn हैं, तो वहाँ पर एक राइट टर्न भी था ना, हाँ पीछे भी गाड़ियाँ आ रही हैं, आगे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियों को कन्फ्यूजन हो रही नहीं हो रही, हाँ ठीक है। वो तो ये भी 100% फेलियर होगा, ठीक हो गया। आपने जब मूव ऑफ किया, इंडिकेटर दे दिया, बंदों को पता लग गया कि आपने क्या किया, आपने मूविंग ऑफ कर दी, और मूविंग ऑफ करने के बाद आप गाड़ी का इंडिकेटर ऑफ करो, चूँकि आप थोड़ा आगे जाके राइट टर्निंग है, yes, उसी के ऊपर जो वोले ड्राइव वाला है, ये उसी जगह पे जब पुल अप आपने किया, मूव ऑफ किया, वहीं पर आपके ये 2 सीरीज मिस्टेकें होगी, ठीक हो गया। फिर प्रिया जी, जब आप चिकेन की तरफ गए, स्पीड चेंज हुई 20 वाली, ठीक है, आप बहुत अच्छे से जाके रुक गई, आगे से 2 गाड़ियाँ आ रही थी, वो निकल गई, उनके पीछे एक मोटरसाइकिल आ रहा था, आपने समझा कि मोटरसाइकिल वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं मुझे लगा मैं मैनेज कर लूँगी कैसे मैनेज होगा, एक गाड़ी चिकेन में एक जगह है गाड़ी की, सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है, मोटरसाइकिल वाले को आपको कम से कम 1.5 मीटर का गैप देना चाहिए। जब किसी मोटरसाइकिल या साइकिल के पास से हम गुजरते हैं पेडेस्ट्रियन के, तो वो तो ज़्यादा वुल्नरेबल होते हैं ना, तो उनको तो ज़्यादा गैप देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उनके करीब जाएंगे, विंड की जो होती है ना, उसकी वजह से भी वो गिर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उनको हम थोड़ा गैप देते हैं। और वो सामने से आ रहा है, मैंने जब ड्यूल कंट्रोल किया, यस, वो 100% फेलियर था, ठीक हो गया। वेट करें ना, उसको जाने दें, आप रुके हुए हैं ना, रुके हुए बंदे को क्या प्रॉब्लम है, देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, मोटर बाइक आ रहा है, हम नहीं मैनेज कर सकते, या तो हम पहले मैनेज करके निकल जाए तो फिर तो ठीक है, वहाँ पर आप मैनेज नहीं कर सकते थे, क्योंकि पब्लिक आ गया था सामने। जब मैंने ब्रेक मारी, वो जब वीडियो में आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं मैनेज होता, जितनी देर में गाड़ी बाहर निकालती, वापस अपनी जगह पे आती, वो मोटरसाइकिल वाला भी आपके मुंह पे आ गया था, ठीक है। तो मैंने आपको मूव भी नहीं करने दिया, वो हो गया। फिर उसके बाद आप वहाँ से निकल गई, राउंड अबाउट से हमने लेफ़्ट किया, फिर आगे एक राउंड अबाउट आया था शेलनी रोड वाला, उस राउंड अबाउट से हम राइट कर रहे थे, और एक ब्लैक कलर की गाड़ी आ रही थी, वो राइट कर रही थी, उसका राइट का इंडिकेटर भी ऑन था, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अब बिल्कुल रुकी ही नहीं उसके लिए, वो क्या, मेरा मेरे अब मैं बताता हूँ, हाँ, क्योंकि ये सारी अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी आपकी स्पीड वाली। उस वक्त जब आप राउंड अबाउट में जा रही हैं, आपके अंदर अर्जेंसी होना शुरू होगी, ठीक है, जल्दबाजी, ठीक है। क्यों जल्दबाजी कर रही है, राउंड अबाउट में आ रही है, आपको पता है राउंड अबाउट से गाड़ी आ रही है, अगर उसका इंडिकेटर ना भी ऑन हो, पहले उसका पहली बात तो उसका इंडिकेटर ऑन था, राइट वाला, ठीक है, अगर उसका कोई इंडिकेटर ऑन नहीं तो फिर हमें और ज़्यादा खतरा हो जाएगा कि पता नहीं लेफ्ट करेगा, पता नहीं राइट करेगा, तो थोड़ा और स्लो कर लें, उसकी पोजीशन को जज करें, उसकी स्पीड को जज करें, तो फिर अगर आपको श्योरिटी हो जाए कि वो लेफ्ट कर रहा है, तो फिर हम राइट कर सकते थे, वो तो कर ही राइट रहा था, ठीक है, तो वो तो 100% फेलियर था, ठीक हो गया। फिर आपने वहाँ से स्पीड हम्प्स किए, उसमें आपको थोड़ा सा नहीं कर रहे थे, मिरर चेक नहीं कर रहे थे, ठीक है। याद रखें कि जब भी हम्प के करीब जाते हैं, हम्प्स में मैंने सारे मेरे चेक किए थे इस बार देखो देखो अब एक्सक्यूज़ देखो, अब आप कह रही हो ना, अब आप वीडियो बनी हुई है, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं, जब आप वीडियो देखेंगे ना, ये बात मुझे पक्का पता हाँ थी, चलो ठीक इसलिए है, अगर आप that's why I मैं did it. मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है, ओके क्योंकि उसमें कोई 8-10 स्पीड हम्प्स हैं, एवरी टाइम जब स्पीड हम्प के करीब आप पहुंचते हो, तो ये मिरर देख लो और वो वाला मिरर देख लो, टाइम हो तो वो भी देख लो, मोटी नज़र मार लो, ठीक हो गया। और एवरी टाइम जब स्पीड हम्प से गुजरते हो और स्पीड इंक्रीज करते हो, तो ये और वो वाला लाजमी चेक कर दो, ओके या स्पीड हम्प से पहले और स्पीड हम्प से बाद, जब स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, तो आपको मिरर देखने होते हैं, ठीक है। अब आपने चूंकि आपने कहा जी कि मैंने देखे, मुझे फील हुआ कि कितनी दफ़ा आपने वो नहीं देखे, तो आपने क्या करना है, अब वीडियो में उस क्लिप में आपने उसको देखना है, ठीक है, कि आप कितनी बार देख रहे हो या कितनी बार नहीं देख रहे हो, खुद आपको पता चल जाएगा, ओके। और ओबीएस करो, देखने का भी होता है कि ओबीएस होना चाहिए, नहीं ऐसे ऐसे नहीं, हाँ, थोड़ा हेड मूवमेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रिया जी, उसी के बाद अब बड़े राउंड अबाउट में हम गए, ठीक है, जो H8 वाला स्टैंडिंग वे का राउंड अबाउट था, जहाँ से हमने राइट करना था, ठीक है, राइट करना था, आप आराम से जाकर रुक गए, वो बहुत बिजी था ना, तो आपने वहाँ पर अटेम्प्ट किया एक बार, क्या उस अटेम्प्ट से आप मुझे होनेस्टली बताएं, क्या उस अटेम्प्ट से आप गुजर सकती थी, निकल सकती थी गाड़ी से जिसमें मैंने ब्रेक मारी थी, नहीं निकल सकती थी, क्या ज़रूरत है। उसके बाद देखें, उसके बाद आपको मौका मिला था ना, काफ़ी देर आप बैठी रही, वेट करते रही, देखो एक राउंड अबाउट बिजी है, ब्लॉकर्स का इंतज़ार करो, यस, या बड़े गैप का इंतजार करो, अगर उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं और अगर वो दूर हैं तो फिर भी निकल सकते हैं, या अगर वो गाड़ियाँ आ रही हैं और वो रुक रही हैं और उधर से ब्लॉकर्स आ रहे हैं, तो देखो कि ब्लॉकर्स कहाँ जा रहे हैं, ब्लॉकर्स हमारी तरफ आ रहे हैं या स्ट्रेट जा रहे हैं, तो अगर ब्लॉकर्स मौका दे दें आपको, तो फिर आप रेडी रखो, लेकिन ये कि अपना उस वक्त आप विजिलेंट हो, एक्टिव हो और रेडी रखो अपने आप को, आपने वो भी नहीं किया, ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया, मैंने रोक लिया गाड़ी को,
ठीक है, वहाँ से आपका किसी सूरत नहीं निकल सकते, वो गाड़ी तेज़ आ रही थी। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद तो आप बैठी रहीं और फिर उसके बाद जो आपने किया वो अच्छा किया, उसी राउंड अबाउट को आपने मैनेज सही तरह से किया, बाद में आप आराम से निकल गई। पीछे हमारे एक वो बूढ़ा आदमी था, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, ठीक है। हाँ, मुझे हाँ राउंडअबाउट्स का थोड़ा ये रहता है कि कि देखो मेरे पीछे वाले पीछे लोग वाले बंदों की मत सोचो, पहले आगे वाले की तो सोचो ना। पीछे हम्म, वाला तो फिर भी सेफ है ना, पीछे है ना, ठीक है, उनको भी उनके बारे में भी थोड़ा बहुत कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन मेन तो आगे वाला है ना, ज़्यादा डेंजर तो आगे ना, वो बेचारा आएगा तो लगेगी गाड़ी उसको, ठीक है। तो पहले उनको डील करो। पीछे वाले बंदे कई दफ़ा ना वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, ओके क्योंकि उनको काम काम खत्म करके जा रहे होते हैं, या काम पे जाना होता है, या कोई और किसी और जगह जाना होता है, तो वो वैसे भी जल्दी में होते हैं। तो उनकी टेंशन लिया करो, लेकिन इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत लगता नहीं है है। थोड़ी देर रुक गए और देर कोई रुकेंगे तो नहीं, पीछे नहीं, वाला कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो हाँ वो सही गलती हुई। है हाँ फिर हम जब गए रेड मोड़ के राउंड अबाउट में, ठीक है, रेड मोड़ का राउंड अबाउट इस बार उसने आपको बोला एट द राउंड अबाउट, ठीक है, स्ट्रेट हेड या फॉलो द रोड हेड, थर्ड एग्जिट बोला उसने, थर्ड बोला ना, स्ट्रेट हेड नहीं बोला चलो जो भी बोला, क्रॉस द रोड बोला, क्रॉस द राउंड अबाउट बोला था उसने, ओके क्रॉस द रोड राउंड अबाउट या स्ट्रेट हेड बोला हुआ होगा, ठीक है। हाँ थर्ड एग्जिट उसने बोला, ठीक है, राइट थर्ड एग्जिट बोला। प्रिया, इसीलिए मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब जब थर्ड और फोर्थ एग्जिट आ जाए तो कोशिश करो कि आप राइट लेन में चले जाओ, यस कोशिश करो, ठीक है। हाँ पहले तो बहुत बात है कि आपने कोशिश बहुत लेट की, ठीक है, क्योंकि 3 गाड़ियाँ पीछे से आ रही थी, ठीक है, और आप बार बार अटेम्प्ट कर रही, एक ऑडी वाला भी था उसके पीछे, ठीक है, आप बार बार अटेम्प्ट कर रही हैं, आप अपनी लाइन को क्रॉस मत करें, अपनी लेन में ही रखें और कोशिश करते रहें। अगर कोई बंदा जाने की इजाज़त दे दे, तो फिर जब मैंने आपका स्टेयरिंग पकड़ा था, उस टाइम वो बंदे आपको जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, 3 लोगों ने नहीं दिया नहीं ना दिया उन्होंने, हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं दिया उन्होंने, तो आप जिस लेन में हो उसी में तो रखो ना गाड़ी को, ठीक है, उसी में रखो फिलहाल, क्या जरूरत है खाम खा उधर जाने की। जब आप वहाँ गई, चलो आपने उसको उसी लेन में मैंने आपको मैनेज करवा लिया, ठीक हो गया। जब आप वहाँ जा रही हैं, ठीक, तो मुझे ये बताइए, आप तो ऑलरेडी डिलेड हो चुकी थी, लेन चेंज करने में आप ऑलरेडी डिलेड हो चुकी हैं, तो जब जब ऑलरेडी डिलेड हो चुकी हैं तो क्यों बार बार लेने चेंज कर रही हैं? आप जिसमें हैं वो तो है ना आपके हाँ पास, वो तो तो थी उसी में से आप गुजर सकती थी। फिर आपने मुझे वहाँ ब्रेक मार दी, ग्रीन लाइट के सामने ब्रेक मार दी, आपने कहा जी यहाँ से तो मैं जा ही नहीं सकती, ठीक है, मैं थर्ड जाना चाहती थी, अब वीडियो में देख लेना आपको पता चल जाएगा, ओके ठीक है, मैं जा ही नहीं सकती, ऐसा कुछ आप बोल रही हैं। राउंड अबाउट के मिडिल में जब आपका लाइट ग्रीन हुई हुई है, ठीक है, तो जिस लेन में आप हैं वो जाती थी, ठीक है, वो उसी से तो हमने थर्ड एग्जिट किया ना, हाँ ठीक है। किया लेकिन वही क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है, पहली बात मेरा क्वेश्चन है, पहला ओके मेरा आपसे क्वेश्चन है, बाद में आपको क्वेश्चन पूछना। मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, ग्रीन का मतलब क्या होता है? हाँ जाना। जाना लेन में आप मौजूद हैं, जब कोई किसी लेन के अंदर आप मौजूद हैं, उसी लेन से वही लेन कर लें, ठीक है, आप राउंड अबाउट से निकल जाएं, चाहे आपको थर्ड जाना हो, चाहे आपको फोर्थ जाना हो, चाहे आप पहले में चले जाएं, चाहे आप दूसरे में चले जाएं, जिसमें हैं वो डेंजर जोन है, जिसमें आप हैं उसी में से निकल जाएं। निकलने के बाद ये काम किसका है, एग्जामिनर का है या इंस्ट्रक्टर का है कि आपको घुमा के वापस ले आए रूट के ऊपर, ठीक है। तो आप वहाँ पर जितनी भी करेक्शन करने की आप कोशिश करेंगी ना, या जितनी भी एफिशिएंसी शो करने की कोशिश करेंगी प्रिया, आप अपने आप को मजीद ट्रबल में डालेंगी, ठीक हो गया। ये मेरा आपको, और ये मैं कितनी बार आपको बता भी चुका हूँ। अगर आप उस लेन में जब थी, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, उन्होंने आपको रास्ता नहीं दिया और मैंने आपको कहा कि इसी से चलते हैं, तो अगर आप उसमें उसी में से चलती रहती हाँ तो क्या होता, या तो सेकंड में चली जाती, यस A5 पे तो जा सकती थी ना, हाँ ठीक है, ओवरटेकिंग लेन पकड़ के, या उसी से जैसे आपने घुमा के थर्ड में चली गई, थर्ड में आपको लेन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन क्या ब्रेक मार के आप देखेंगे ऐसा ऐसा करेंगी, तो वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा ही है। अब आपका क्या क्वेश्चन है? कि उस रोड पे जब वो स्ट्रेट था तो हमने कहा अब उस स्ट्रेट से थर्ड एग्जिट कैसे हो, मतलब थर्ड एग्जिट नहीं होगा, स्ट्रेट ही जाने का सोच रही थी मैं, क्योंकि रोड पे अगर होता तो या तो आपको इसीलिए मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा ये था कि स्ट्रेट, राइट और लेफ्ट, ठीक है। इस बात पे कंफ्यूज मत हुआ करें, आपको नंबर ऑफ एग्जिट याद रखने होंगे, क्योंकि जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, चाहे वो नेविगेशन की हो, चाहे वो एग्जामिनर की हो, वो साथ में आपको नंबर ऑफ एग्जिट भी बताते हैं, क्योंकि जिसको आप स्ट्रेट समझ रही हैं वो मेरे हिसाब से शायद लेफ्ट हो, ठीक है, जिसको आप राइट समझ रही हैं वो मेरे हिसाब से शायद स्ट्रेट हो, ठीक है, नेविगेशन के हिसाब से भी ऐसा ही होता है, अंडरस्टैंड हुआ। क्योंकि उस राउंड अबाउट में जो स्ट्रेट है ना, जो थर्ड एग्जिट है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट उसके बराबर आता है। अगर आप उसके ऊपर से देखें ना मैप में, ठीक है, एरियल व्यू करें ना आप, तो बिल्कुल सामने आता है उसके 12 o'clock पे आता है वो, ठीक है, इसलिए उसको वो स्ट्रेट बोल रहा था। तो जो पहले वाले दो थे ना, फर्स्ट एंड सेकंड वाला, वो मोर टुवर्ड द लेफ्ट थे, ओके ठीक है, इसलिए उनको वो शायद वो लेफ्ट बोले, ठीक है, सेकंड को और फर्स्ट को लेफ्ट ही बोलेगा, ठीक है, और स्ट्रेट वाले को क्या बोलेगा, थर्ड वाले को क्या बोलेगा, स्ट्रेट, स्ट्रेट ठीक है, फॉलो द रोड हेड वाला। एनीवे, तो आपको नंबर ऑफ एग्जिट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लेफ्ट राइट इसमें कभी कभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। एनीवे, तो वो हुआ। उसके बाद आप रोमन राउंड अबाउट में जब आप गए, बाकी सारा आपने ठीक किया, ठीक है, रोमन राउंड अबाउट में आप गए तो गाड़ी को आप एक गाड़ी के साथ से पैरेलल जा रहे थे, ठीक है,
आप कई बार वो रोमन राउंड अबाउट कर चुके, पोजीशन आपकी बहुत खूबसूरत थी, आपने स्पीड इंक्रीज देखा, ये सारे स्पीड के इशू हो रहे हैं ना, स्पीड इंक्रीज करके एक बंदे के साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से गाड़ी वाला आपसे भी तेज था, वो आपको भी जल्दी थी, उसको भी बहुत जल्दी थी, वो आगे मैंने ब्रेक मारी, गलत हुआ ना। आराम से अगर आप जाती, आप सारी पोजीशन आपकी ठीक थी, राउंड अबाउट आपको पता है कि रोमन वहाँ मौजूद है, आप आराम से जाती रुकती, आपके साथ वाला गाड़ी वाला बेशक निकल जाए, वो हो सकता है फार्मूला 1 का ड्राइवर हो, ठीक है, वो हो सकता है रिस्की ड्राइवर हो, वो शायद हो सकता है वो प्रोफेशनल हो, वो रेसिंग करता हो, ठीक है, हमें उनके साथ तो कम्पीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करती, आप वहाँ रुक जाती, आराम से राइट से गाड़ी आ रही थी उसको जाने देती, फिर आप स्ट्रेट जाती या लेफ्ट जाती, जो भी आपने करना था, ठीक है। तो वो आपको गलती, आपने उसी बात आपने मुझे बता दिया था, ठीक है। फिर प्रिया जी उसी रोड के आगे, जब उस राउंड बोर्ड के आगे हम टेस्को के आगे गए, तो उसी रोड के ऊपर आपने ओवर स्पीडिंग की, ठीक है। उस रोड के ऊपर जब हम सुबह आप वापस आ रहे थे, जब हम आ रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि इस रोड के ऊपर काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, आप इधर से जाते हुए आपने वही गलती की, आप 35 कर रही थी, ठीक है, ये देखिए मैंने वहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये देख लेना। उस रोड के ऊपर ना, टेस्को के बिल्कुल सामने वाली जो रोड है वो सीधी है ना, उधर से आते हुए फैनी की तरफ से आते हुए और इधर से जाते हुए अक्सर लोग वहाँ पर 35 कर जाते हैं मिनी राउंड बोर्ड से पहले, ठीक है, उनको समझ ही नहीं आती, वो देख नहीं रहे होते, तो केयरफुल अबाउट इट। आज जब हम वापस उधर से आ रहे थे, मैंने उस वक्त आपको वार्निंग दी थी, लेकिन रूट करते बाद आप फिर भूल गई ये। उसके बाद हाँ, जब आप वो फिर आपने सही किया, फिर स्टार्ट का राउंड पर आपने ठीक किया, फिर जब आप ब्लैचरी के अंदर आप दाखिल हुई, ठीक है, आपने जब लेफ़्ट किया, ठीक है, ओके, लेफ़्ट किया और आपने ओवर स्टेयरिंग करके आप उस तरफ जा रही थी, उसको बचाते हुए आपने ज़्यादा स्टेयरिंग कर ली और वैन को गाड़ी लगने वाली थी, जब मैंने ब्रेक मार दी थी और आगे एक लड़का खड़ा था वैन के पास, याद आ गया आपको, उसमें गलती आपकी ये, आपकी स्पीड तेज़ थी। आप जब बेंड फिर रही हो लेफ्ट, आपको पता है कि वो नैरो रोड है, अब ब्लैचरी की रोड है तो आपको पता है नैरो है, आप अपने को स्लो कर लो और थोड़ा सा गैप, लेफ्ट का गैप भी रखो ना, कर्व को ना लगे, आगे जाकर दो बार आपने कर्व को भी मार दी उसी डर से, ठीक है। तो आप जब घुमा रहे हो तो गाड़ी को स्लो करो और आराम से उसका मिडिल टारगेट करो, लेन का, अपनी लेन का मिडिल टारगेट करो, आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, दूसरी तरफ गाड़ी नहीं जाएगी, एक ये प्रॉब्लम हुआ आपका, ठीक है। उसको जब आपका ओवर स्टीयरिंग हुआ था ना, तो आप उसको नहीं, उसको बचाने के लिए जब आप बेसिकली बड़ा लूप आपने लिया ना, जब बड़ा टर्न लिया, तो उसके बचाते हुए आपने स्पीड मारी, ठीक है, स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग जब आपने किया तो आगे लगने वाला था, उसको वैन खड़ी थी वाइट वाली, आप ये वीडियो में आप देख लेना, फिर मैंने ब्रेक मार दी थी, आप उसके बिल्कुल, ये आपका मिरर जो है उसके बिल्कुल करीब चला गया था, सही हो गया, हो सकता आप ना मारती उसको, हो सकता कंट्रोल कर लेती, लेकिन एग्जामिनर इतने करीब जाने नहीं देता ना, ये प्रॉब्लम है ना। अच्छा, जब वो हो गया, एट द सेम टाइम एक लड़का उधर से आ रहा था, याद आ गया आपको, ठीक है, वो वैन से उधर से आ रहा था, आप रुक गई ना, तो रुक जाएं, अब देखें वो क्या करने वाला बच्चा है या जो भी यंगस्टर टीनेजर होगा जो भी है, ठीक है, तो उसकी जजमेंट भी पूरा हो सकता है, शायद वो कभी गाड़ी ना चलाना जानता हो, ठीक है, तो आप रुक जाएं, ओके। और अगर आप वहाँ जाना भी चाहती हैं तो फिर थोड़ा दूर हो जाए ना, पेडेस्ट्रियन जो ब्रोकन लाइन होती है, क्या हम लोग लाइन क्रॉस कर सकते हैं ना, ब्रोकन लाइन को क्रॉस करके अगर सामने से गाड़ी नहीं आ रही तो क्रॉस कर सकते हैं ना, तो सामने से अगर गाड़ी नहीं आ रही तो आप थोड़ा परे हो जाएं, उससे दूर हो जाएं और उसको जाने दें, या रुक जाएं, दोनों में से एक काम करें, आपने वो नहीं किया ना, आप दूर गई और ना आपने रोकी, फिर मुझे रोकनी पड़ गई दोबारा। फिर उसी में से जब वो बेंड हमने फिरे, जहाँ पर वो उस गाड़ी के साथ हमारा इंसिडेंट हुआ, जो गाड़ी रास्ता बंद कर गई सामने से, वो फिर पीछे उसके लर्नर आता, उसमें आपकी गलती नहीं थी, चूँकि आप बेंड फिरी, आपकी पोजीशन ठीक थी, सिर्फ आपने वो कर्व को टच किया था थोड़ा सा लेफ्ट से, जब आप ऐसे बेंड किया आपने, उस सामने से गाड़ी एकदम से आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं, फिर आपने जो मूव की वहाँ पर आप राइट साइड पे जगह थी, ठीक है, उसको वहाँ आना चाहिए ना, आपने टर्निंग शुरू कर दी वहाँ जाने की, आप वहाँ क्यों जा रही हैं, मतलब वो भी कुछ नहीं कर रहा तो था, वो नहीं हम कुछ भी कर रहा, नहीं तो कर उसका रहे प्रॉब्लम आपका तो नहीं है ना, एग्जामिनर को इंटरवीन करने देना, थे। ओके, एग्जामिनर को इंटरव्यू, मैंने आप इंटरव्यू करके आपको कहा कि थोड़ा लेफ्ट कर लें, कर्व को थोड़ा इस्तेमाल कर लें, कर्व के ऊपर गाड़ी चढ़ा लें, ठीक है, उनको जाने, चूँकि रास्ता बंद हो गया, असली तौर पे उस बंदे को क्या करना चाहिए था, हम रुक गए थे ना, उसको आना चाहिए था उस छोटी जगह में, जगह टाइट थी लेकिन उसकी गाड़ी बड़ी थी, उसकी गाड़ी बड़ी थी, पहली बात है कि उसको प्लानिंग करनी चाहिए थी, उसको पता होना चाहिए था कि तेज़ी में क्यों आ रहा है, पीछे अगर कोई मतलब इधर से कोई गाड़ी आ सकती है ना बैंड में, तो ये आप भी लेसन लर्न करें कि आपको भी ये काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आपकी गलती नहीं थी, ठीक है, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करने में आपको प्रॉब्लम हुआ, आप रॉन्ग साइड पे गाड़ी पार करने की कोशिश करें, क्यों, वो उसकी जगह है, उसको जाने दें, आप पीछे रुक जाएं, ठीक। उसके पीछे एक लर्नर था वाइट कार वाला, उसने भी गलती की, ठीक है, अब सिचुएशन ख़राब हुई है तो उसका काम नहीं बनता था कि वो पीछे रुके, तो उसके टीचर का भी काम बनता था कि उसको रोक ले पीछे, वो उसको फॉलो कर रहा है, वो दोनों फेल हो गए, और दोनों साथ में ही दोनों साथ में आ गए, ठीक है, उसको पीछे रुकना चाहिए था, वो दोनों फेल हो गए, खैर वो वहाँ पर हमने किया, फिर उसमें आपने थोड़ा सा वो कर्व को हिट किया, थोड़ा बेंड फिरते वक्त ना, उसका एहतियात करना, क्योंकि जब आप बेंड करते हो ना, ये ब्लैचरी के अंदर की वो शार्प बेंड है, रोडें बहुत नैरो हैं, तो केयरफुल अबाउट इट। एंड उसके बाद आपने जो है ना
ये जो इंडिकेटर आपने ऑलरेडी दिया वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। हाँ, ये वो जो third वाला। था एंड पे, जब First एंड पे आते हुए, वाला। फिर हम यहाँ जब आ रहे थे लास्ट जो आपने मिस्टेक की, ठीक है, टी जंक्शन से हम जब लेफ्ट कर रहे थे तो एक उधर से वैन आ रही थी, राइट कर रही थी, हाँ, ठीक है, वो भी उधर से राइट कर रहा है और आप इधर से लेफ्ट कर रही हैं, ठीक है। असली तौर पे उसको वेट करना चाहिए था, तब उसका सिग्नल ऑन, मतलब मुझे नहीं पता था वो राइट आने वो आ रहा था ना, उसका सिग्नल ऑन था, ठीक है। अब हुआ क्या, बाय द टाइम आपने जितना आपने टाइम लगाया ना, इतनी देर में वो कर चुका था। अगर वो ना कर किया हुआ होता ना उसने, तो आप लेफ्ट कर लेती ना, तो फिर तो ठीक था। जब वो कर चुका तो फिर आप वेट कर लें, जहाँ पर मैंने आपको ब्रेक मारा, चूंकि उसने जल्दबाजी की वहाँ से, ठीक है। वो पहले जल्दबाजी करके वो निकल आया, जब वो निकल आया तो फिर आपको रुक जाना चाहिए, ओके। या आप उससे पहले पहले कर लें, या फिर अगर वो निकल जाए तो आप ब्रेक मार लें। ये 50-50 होता है, डिपेंड करता है कि उसका सिचुएशन क्या है, एग्जामिनर की, उसको एग्जामिनर किस एंगल से देखता है, ठीक है। क्योंकि वो भी तो राइट कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी तो वेट करना चाहिए था ना। हम तो लेफ्ट कर रहे थे, दोनों जंक्शन पे थे, अंडरस्टैंड। तो वो थोड़ा सा इशू हुआ, उसकी मैं आपको जो ना लेट ऑफ करता हूँ, उसके लिए कोई इतना इशू नहीं है, ओके। तो ये था आज आपका मोस्टली जो है ना, क्या नाम है, 2 पेजेस। हाँ 2 पेजेस नहीं हो गए, ओके। सॉरी, मनूवर आपने ठीक किया था, मनूवर मैं भूल गया बताना, मनूवर आपने ठीक किया, लेकिन आप जब रिवर्स कर रही थी और आपकी गाड़ी दूर जा रही थी ना प्रिया, तो आपको फील होना चाहिए था कि मेरा बैक वाला टायर थोड़ा दूर जा रहा है, यस। जब अपने कौन सा वाला, फर्स्ट वाला मनूवर, सेकंड मनूवर तो मैंने आपको जानबूझ के करवाया ना, वो तो हमने पैरेलल पार्किंग नहीं की हुई थी, मैंने कहा चलो कर लें, वो पार्ट ऑफ द मॉक टेस्ट नहीं था, वो आपने अच्छा किया। जो पहला मनूवर हमने किया, पुल अप ऑन द राइट, तो रिवर्स बैक करते हो आपको आपको नहीं नजर आ रहा, आप मेरे देख रही थी बार बार, तो आपको नहीं नजर आ रहा कि मेरी गाड़ी दूर जा रही है, तो थोड़ा सा ऐसा इसे घुमा लेना, ठीक है, तो करीब आना शुरू हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक आपका इशू हुआ, एंड ओवरऑल इट वाजंट बैड, ठीक है। मॉक देखो, मॉक टेस्ट तो फेल हुआ ना, ठीक है, लेकिन जो मनूवर था वो ओवरऑल मनूवर इतना बैड नहीं था, ठीक है, अच्छा था, थोड़ा सा दूर हो रहा था वो, तो जब दूर हो उसको करीब कर लें, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी थी, और फिर आपने उसके बाद जो दूसरा किया पैरेलल वाला, वो अच्छा किया आपने, दैट्स गुड, पैनिक मत हुआ करें। एंड मॉक टेस्ट में जो आज गलतियाँ हुई ना, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये मॉक टेस्ट बहुत मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल है क्योंकि मुश्किल हम इसलिए लाते हैं ना प्रिया, अब देखो एग्जाम के लिए जब आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी ना, तो आप चीज़ों को फिर अंडरस्टैंड करेंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को आप समझ पाएंगे और फिर उनको ठीक भी करेंगी। स्पीड इसमें मेन फैक्टर है, ठीक है, स्पीड इसमें मेन फैक्टर, अपना स्पीड को कंट्रोल करें, ओके। यू हैप्पी अबाउट इट, ठीक है।